Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 21 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year's SimCats and the set is on arrangement and the set says A, B, C, D, E, F, G and H are the 8 researchers from National Research Institute who attended their dinner organized on the last day of one research conference. The 8 researchers are from botanist, chemist, economist, historian, physicist, psychologist, statistician, and zoologist in some order, and they are from 8 different cities: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Chandigarh, Delhi, Hyderabad, Mumbai, and Pune in some order. The following points are known about the order in which they arrived at the dinner. The chemist arrived immediately following the economist, who is in turn arrived immediately following the botanist. C arrived immediately following A, who is in turn arrived immediately following H. The researcher from Bhopal arrived immediately following the researcher from Chandigarh, who is in turn arrived immediately following the researcher from Pune. H is a psychologist from Pune who was fifth researcher to reach the venue at the dinner. Exactly one person arrived between psychologist and zoologist. Exactly one person arrived between the researcher from Hyderabad and the researcher from Delhi. Exactly one person arrived between A and E. G is a botanist from Hyderabad. The zoologist is from Bhopal and historian is from Ahmedabad. D is a physicist and B is a chemist. ठीक है. सो एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है जहाँ पे अपने को क्या क्या चीजें दी हुई हैं. 8 लोगों का नाम दिया हुआ है, 8 लोगों का रिसर्च का डिपार्टमेंट दिया हुआ है एंड दीज 8 पीपल आर बिलोंगिंग टू 8 डिफरेंट सिटीज एंड उनका किस ऑर्डर में दे आर कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस वो मेंशन है. ठीक है. मैं जब पैसेज को पढ़ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में यानी जो उनके रिसर्च डोमेन उसके बारे में बहुत हर कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है. लाइक अगर पहले वाले पॉइंट में भी ध्यान दो या थर्ड में भी ध्यान दो या फोर्थ पे भी हर लगभग हर पॉइंट में डोमेन के बारे में ज्यादा बताएं. एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. द नेम, प्रोफेसर, सिटी एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ अराइवल एट द डिनर कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड फॉर हाउ मेनी ऑफ द 8 रिसर्चर इफ एफ इज फ्रॉम मुंबई. अगर इफ का पॉइंट आ गया तो चांसेस आर वेरी हाई दैट ये पूरा सॉल्यूशन नहीं बनने वाला, यूनिक नहीं बनने वाला. There may be a situation जहाँ पे cases बन रहे हो. That is why it is mentioned if F is from Mumbai, the name, profession, researcher, city as well as the order of arrival at the dinner can be uniquely determined for how many of the 8 researcher. Which of the following can be a correct combination? Z zoologist Bhopal, A historian Ahmedabad, E statistics मुंबई, बी केमिस्ट बैंगलोर. ये एक पॉइंट, ये क्वेश्चन है जो मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है अगर ये ओपन एंडेड होगा तो. Question number 4 में if we arrived at the dinner immediately before the psychologist who was the first researcher to arrive the dinner. ठीक है. So let's start with the point वाला point. मतलब जो additional information है वहां से करना शुरू करते हैं. So what I've done, I've created a small table as usual. मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैंने मेंशन करा हुआ है उनके रिसर्चर्स का नाम, मतलब रिसर्चर्स का बैकग्राउंड. along with them I'll be mentioning किस सिटी से वो आ रहे हैं, फिर किस मतलब उनका नाम क्या क्या है और किस ऑर्डर में दे आर कमिंग. ठीक है. सिंस मेरे को पता है कि यहाँ पे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उनके बैकग्राउंड के लेके दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे पहले हिस्से पे बैकग्राउंड यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा. लाइक आई स्टार्ट विद दी बोटेनिस्ट. ठीक है. केमिस्ट, हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, psychologist, statistician, इकोनॉमिस्ट रह गया था एंड zoologist. तो कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. आठों का मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर, मतलब बेसिकली बैकग्राउंड मेंशन कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से चीजों को भरता रहूंगा. बिकॉज होता क्या है अरेंजमेंट के अंदर ज्यादातर मतलब ये एक प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को, लाइक कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से लीड मिलेगी. सो आई ऑलवेज टेल एक बार पैसेज पढ़ो, पैसेज में देखो किस पर्टिकुलर पैरामीटर पे ज्यादा बात हो रही है. मैं जब पैसेज पढ़ा था तो आई रियलाइज कि यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में बहुत बात हो रही है तो मैंने इसीलिए ये यूज करा. द केमिस्ट अराइव्ड इमीडिएटली बिफोर द इकोनॉमिस्ट हु इज इन टर्न अराइव्ड इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉटनिस्ट. तो यानी कि बॉटनिस्ट पहले आया, उसके बाद कौन आया है, इकोनॉमिस्ट आया है एंड केमिस्ट आया है. ये इन सम ऑर्डर आने वाले हैं. ठीक है.
तो यानी कि मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 2 है, 3 है, 4 है, 4 5 6 ऐसा कुछ होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 मेरे को बताना चाह रहा है। ठीक। सी अराइव्ड इमीडिएटली फॉलोइंग ए हु इज इन टर्न अराइव्ड इमीडिएटली फॉलोइंग एच। कोई कैरेक्टर है सी जो कि ए के तुरंत बाद आया और ए जो है एच के तुरंत बाद आया। तो मतलब ऑर्डर वाइज बात करें तो ए, एच, ए और सी को होना चाहिए, इस ऑर्डर में ये चलना चाहिए। ठीक है। द रिसर्चर फ्रॉम भोपाल The researcher from Bhopal arrived immediately following the researcher from Chandigarh, who is in turn arrived following the researcher from Pune. ठीक है। तो पहले पुणे वाला बंदा आया, उसके बाद कौन आया है, उसके बाद बंदा आया है फ्रॉम चंडीगढ़ एंड हु इज इन टर्न फॉलोड बाई भोपाल। उसके बाद अपने पास भोपाल वाला बंदा है। तो ये 3 ऑर्डर अपने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है। एच इज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे। एच कौन है, वो साइकोलॉजिस्ट, और वो कहाँ का है, पुणे का। ठीक है। एच मिल गया जो कि अपने को पता है वो पुणे शहर का है। एच इज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे हु वाज फिफ्थ रिसर्चर टू रीच द वेन्यू फॉर द डिनर। वो 5th नंबर पे आया था। ठीक है। 8 में से 5वें नंबर पे वो आ रहा है। एग्जैक्टली वन पर्सन अराइव्ड बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। एग्जैक्टली एक बंदा है जो कि जूलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में आना चाहिए। तो अगर साइकोलॉजिस्ट 5वें नंबर पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो तीसरे नंबर वाला बंदा हो, या एक पॉसिबिलिटी है कि वो 7th नंबर वाला बंदा हो, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि 5th से एक स्पॉट हम छोड़ेंगे। एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। तो एक जो बंदा है वो 4th रैंक वाला भी हो सकता है, एक बंदा 6th रैंक वाला भी हो सकता है। ठीक है। Exactly one person arrived between researcher from Hyderabad and a researcher from Delhi. ठीक है। हैदराबाद और दिल्ली वाले के बीच में भी एक बंदे का डिफरेंस दिया हुआ है। तो प्रॉब्ली ऐसा होगा, हैदराबाद एक गैप छोड़ के दिल्ली, या दिल्ली एक गैप छोड़ के हैदराबाद होना चाहिए। ठीक है। हमने ये भी मेंशन कर लिया। अच्छा। एग्जैक्टली वन पर्सन अराइव बिटवीन ए एंड डी। ए और ई के बीच में एक को होना चाहिए था। तो ए इधर है, ए के इधर ई आ सकता है, या ई इधर भी आ सकता है। मतलब अगर मेरे को ए की रैंक मिल गई, जो कि अगर ध्यान दो तो मिल चुकी है, बिकॉज मेरे को एच की रैंक पता है। एच की रैंक अगर 5th है तो ए की रैंक हो जाएगी 6th और सी की रैंक हो जाएगी 7th। उस केस में जो बंदा है ई, उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, एक का डिफरेंस क्रिएट करना है। उसकी रैंक हो सकती है या तो वो 4th होगा या तो वो 8th होगा, क्योंकि ए की रैंक मेरे को पता है वो क्या है, 6th, और ए और ई के बीच में एक का गैप है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली हर पॉइंट का कुछ ना कुछ अपना एक क्रक्स निकाल निकाल के लिखते जा रहा हूँ, और मेरे को बाद में वो चीजें एक पेज पे दिखती जाएंगी। मतलब मेरे को दिखाई देगा कि वो चीजें आपस में एक सिनर्जी क्रिएट होता जाएगा, वो दिखेगा। ठीक है। जी इज अ बॉटनिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, बॉटनिस्ट है जो कि हैदराबाद का है। चलो, यहाँ पे जी आ गया, हैदराबाद का। ठीक है। तो यानी कि ये कैरेक्टर का नाम है जी। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट कौन है नहीं पता, केमिस्ट कौन है नहीं पता। अच्छा, और पढ़ लेते हैं। द जूलॉजिस्ट इज फ्रॉम भोपाल। जूलॉजिस्ट जो है वो कहाँ का है, वो भोपाल का है। अच्छा जी, भोपाल वाले को यूज कर लेते हैं। भोपाल वाले के बारे में क्या पता था, वो जो है चंडीगढ़ के बाद आता है, चंडीगढ़ वाला पुणे के बाद आता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो पुणे का भी पता है, चंडीगढ़ का भी पता है, भोपाल का भी पता चल गया। क्योंकि पुणे का अपने को पता है कि ये 5th स्पॉट वाला है, तो चंडीगढ़ 6th स्पॉट वाला होगा, भोपाल वाला 7th स्पॉट होगा। यानी कि इसकी जो रैंक होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, 7। ठीक है। ऑल्सो ये बंदा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिखा हुआ था, हमने ये चीज दोनों स्टेटमेंट से कनेक्ट करा हुआ, 5th 6th 7th स्पॉट। यानी कि वो कौन होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। यानी कि कोई ए है हु इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड इज गोइंग टू कम एट 6th पोजीशन, ये भी अपने को पता है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे जूलॉजिस्ट को लेके अपने को इन्फॉर्मेशन थी ना कि वो 3rd और 7th होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे क्लियरली फिगर आउट कर लिया कि वो क्या होना चाहिए, 7th ही होना चाहिए। तो एक स्पॉट ये इन्फॉर्मेशन भी अपने को यूज हो चुकी है। ठीक है। द जूलॉजिस्ट इज फ्रॉम भोपाल एंड हिस्टोरियन इज फ्रॉम अहमदाबाद। बेसिकली जैसे जैसे तुम्हें चीजें मिलती जा रही है ना, तुरंत लिखते जाओ। मतलब मैंने ऊपर से पढ़ते हुए आ रहा था, मेरे को जैसे मैं भोपाल पे पहुंचा तो मैंने रियलाइज करा, अच्छा भोपाल पुणे से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। एंड सिंस आई नो दी पुणे की रैंकिंग की 5th है, तो मैंने उससे एच ए सी वाले को भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है। द जूलॉजिस्ट इज फ्रॉम भोपाल एंड हिस्टोरियन इज फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से कौन है, हिस्टोरियन है। यहाँ पे अपने को मिल गया अहमदाबाद। ठीक है जी, यहाँ पे अहमदाबाद भी मिल गया। डी इज अ फिजिसिस्ट एंड बी इज अ केमिस्ट। अच्छा, फिजिसिस्ट कौन है, डी है, और बी कौन है, केमिस्ट है। बी कौन है, केमिस्ट है। बी आ गया अपना केमिस्ट। ठीक है। केमिस्ट के बारे में क्या पता था, वो बॉटनिस्ट, इकोनॉमिस्ट और केमिस्ट, ये तीनों एक ऑर्डर में चल रहे होते हैं, ये पता है। यानी कि यहाँ पे अपने को ये मिल गया, ये होना चाहिए ये बंदा। ठीक है, सही है। अब अपने को पता है ये 3 कंसेक्यूटिव भी देना है। अब ये 3 कंसेक्यूटिव की रैंक क्या हो सकती है,
ये रैंक हो सकती है या तो 1 हो सकती है, तो उस केस में इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और केमिस्ट हो जाएगा 3, केमिस्ट हो जाएगा 3, या ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, तो उस केस में केमिस्ट हो जाएगा 4, ठीक है। या मैं क्या बॉटनिस्ट को 3 दे सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स को 4 देना पड़ेगा, केमिस्ट को 5 देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे को साइकोलॉजिस्ट के लिए 5 मिला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मैं उनको 4 5 6 नहीं दे सकता क्योंकि 5 6 7 का पता है। तो मेरे पास जो दो पॉसिबिलिटी मैं बना सकता था बॉटनिस्ट, इकोनॉमिस्ट और केमिस्ट को इन अ रो रखने के लिए, वो दो ही पॉसिबिलिटी में 1 2 3 हो सकती है या 2 3 4 हो सकती है, बस इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो मेरे को क्या पता है, एक बंदा है ई जो कि 4 और 8 रैंक पे आना चाहिए। अब वो कौन होगा इसका नहीं पता, ठीक है। मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन थी, मैंने ये इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लिया। इसमें पता है कि ए है जो कि 6 आएगा, बस इतना पता है। ये इंफॉर्मेशन यहां से मैंने अभी है जो कि अभी एक्सट्रैक्ट करना बाकी है। अच्छा, एक इन्फॉर्म मेरे पास ये थी पुणे वाली, जिसमें मेरे को ये मिल गया कि ए 6 चंडीगढ़, ये एक साथ आना बाकी है। तो वो कहां पे आ सकता है, अगर ध्यान दो तो यहां पे नहीं आ सकता ए, यहां पे भी नहीं आ सकता ए क्योंकि ए 6 चंडीगढ़ नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता वो क्योंकि यहाँ पे डी आ चुका है, यहां पे भी नहीं आ सकता। यहां पे आ सकता है क्या, स्टैटिस्टिशियन के पास ए चंडीगढ़ 6 पॉसिबल है आप आना। यहां पे आ सकता है क्या, देखो इकोनॉमिक्स में भी नहीं आ सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिस्ट है उसकी जो पॉसिबल रैंकिंग हो सकती है वो क्या होने वाली थी, सेकंड या थर्ड, ठीक है। इस पूरे चीज से मैंने क्या कनेक्ट करा, ये जो ए और चंडीगढ़ वाला बंदा और 6 वाला वो एक ही जगह आ सकता है, वो कहाँ है, स्टैटिस्टिक्स के पास। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, बेसिकली सारी चीजों को कनेक्ट करके लिख दिया। मेरे को क्या दिख रहा है, केमिस्ट पे ए नहीं आ सकता, हिस्टोरियन पे नहीं आ सकता बिकॉज ए इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड दिस गाय इज फ्रॉम अहमदाबाद। ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता। ए इकोनॉमिक्स में आ सकता था बट ये बंदा जो ए है उसकी रैंक पता है वो है 6, और इकोनॉमिक्स की जो रैंक हो सकती थी वो सेकंड और थर्ड हो सकती थी। ये हमने कैसे फिगर आउट करा, ये हमने ये पॉइंट को यूज करके फिगर आउट करा था, जहां पे हमने ये देखा था कि बोटनिस्ट, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री ये कंजिक्यूटिवली आते हैं, ये आगे पीछे नहीं आते, ये मतलब एक साथ आते हैं। मतलब पहले बॉटनिस्ट आता है, फिर इकोनॉमिक्स आता है और वो केमिस्ट आता है। तो वो पॉसिबल रैंकिंग क्या बन सकती थी, 1 2 3 2 3 4। बाई दैट मैंने क्या कंक्लूड करा, यहां पे होना चाहिए था ए, यहां पे आना चाहिए था चंडीगढ़, और यहां पे आना चाहिए था 6th बंदा टू अराइव, ठीक है। अब अपने को ये भी मिल गया, चलो ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अपने पास दो चीजें पता है, एक पता है कि दिल्ली और हैदराबाद में एक का गैप था, ठीक है। हैदराबाद वाला बंदा कौन होने वाला था, वो या तो 1 होने वाला था या तो 2 होने वाला था, ठीक है। दिल्ली वाला फिर उस केस में क्या होगा, या तो वो 1 वाले केस में 3 होगा या तो वो 4 होगा, वो पीछे नहीं हो सकता। अगर उल्टा होता, मान लो मेरे को पता होता कि हैदराबाद वाले की रैंकिंग है 3 और 4, उस केस में दिल्ली वाला बंदा या तो 1 और 2 हो सकता था, या तो वो 5 और 6 भी हो सकता था। बट सिंस आई नो कि हैदराबाद की जो पॉसिबल रैंकिंग है वो 1 और 2 होने वाली है, तो दिल्ली वाले की जो पॉसिबल रैंकिंग है वो 3 और 4 ही होने वाली है। और दिल्ली वाली जो पॉसिबल रैंकिंग है 3 और 4 वो किसकी हो सकती है, केमिस्ट की ही हो सकती है। तो यहाँ पे अपने को एक और बंदा मिल गया, वो कौन मिल गया, दिल्ली वाला मिल गया, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया है, एक हिस्टोरियन बचा है अहमदाबाद वाला, एक इकोनॉमिक्स बचा है, उसको कहाँ का है वी आर नॉट श्योर, एक फिजिसिस्ट पता है जो कि कहाँ का है नहीं पता। रैंकिंग वाइज बात करें 1 2 3 4 2 3 और यहाँ पे 7 आ चुका है। कौन सी रैंकिंग है जो अभी तक अपने को क्लियर नहीं मिल रही है, अपने पास 4 1 2 3 4 और 8 ये 4 रैंकिंग है। इनफैक्ट 1 2 3 4 और 8, हाँ ये 5 रैंकिंग है जो अपने को क्लियर यूनिक नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सो 1 2 3 4 और 8 ये 4 रैंकिंग है जो यूनिक नहीं मिल पा रही है। कैरेक्टर्स की बात करें तो ए बी सी डी ई और एफ है जो अभी 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 तक अपने को नहीं पता चले हैं। सिमिलरली अगर नाम की बात मतलब सिटी की बात करें तो अपने पास बैंगलोर और मुंबई, बैंगलोर और मुंबई ये दो शहर हैं जो कि नहीं मिले, ठीक है। एक बार सारे जो इंफॉर्मेशन उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ ऐसा हो जो और मिल पाए। अभी तक मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से मैंने 70% टेबल को तो भर लिया है। एंड सिंस आई नो इफ की बात होने वाली है तो ये ओपन एंडेड रहने वाला है और ये दिख भी रहा है। एक बार फिर भी लेकिन सारी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने यूज कर लिया था केमिस्ट्री वाला, यहाँ पे लिख रखा और वो पूरा यूज कर लिया। सी अराइव, ये भी वाला पॉइंट मैंने अच्छे से यूज कर लिया था कि सी ए और एच ये एक ऑर्डर में आने वाले, बेसिकली एच ए सी आने वाले हैं। फिर द रिसर्चर फ्रॉम भोपाल अराइव्ड, ये वाला पॉइंट भी मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे यूज करता ना, चंडीगढ़ सॉरी पुणे चंडीगढ़ भोपाल ये इन रो आने वाला है।
एच इज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे हुआ, ये तो सबसे ज्यादा यूज करा था, इसी से तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एग्जैक्टली 1% बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, वो हमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया था कि वो 7th रैंक वाला होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 1% राइट बिटवीन ए एंड डी, वो भी हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली 1% बिटवीन हैदराबाद एंड द रिसर्चर फ्रॉम दिल्ली, वो भी यूज कर लिया, जिससे हमने ये एक्सपेक्ट करा था कि केमिस्ट्री बी ये होने वाले हैं दिल्ली वाले बंदे। ठीक है, एग्जैक्टली 1 बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई का मतलब ए की रैंक पता है वो है 6, तो ई की रैंक भी अपने को फिगर आउट कर पाएंगे। ई की रैंक होगी या तो 4th या तो 8th। सिंस दोनों का ही अपने को नहीं पता, तो हम अभी ई के बारे में कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ई के बारे में बस ये लिख देते हैं कि उसका रैंक प्रॉब्ली 4th या 8th होनी चाहिए। एग्जैक्टली 1% बिटवीन ए एंड डी भी यूज हो गया। जी इज अ बॉटनिस्ट फ्रॉम हैदराबाद लिख दिया, जूलॉजिस्ट फ्रॉम भोपाल लिख लिया, हिस्टोरियन फ्रॉम अहमदाबाद लिख दिया, डी इज अ फिजिसिस्ट एंड बी इज अ केमिस्ट, ये भी लिख लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, 10 पॉइंट को यूज कर लिया है। एंड लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ मिल सकता है क्या, बिकॉज इफ की बात हो रही है तो ये मोस्टली मेरे को लग रहा है कि ये यूनिक ही बनने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द नेम, प्रोफेशन, सिटी एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ अराइवल एट द डिनर कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड फॉर हाउ मेनी पीपल। अच्छा, नाम, डोमेन मतलब उनका बैकग्राउंड एंड सिटी, और ये चारों चीजें देखो, एक तो इसका मिल रहा है एच का, एक इसका मिल रहा है ए का, और एक सी का मिल रहा है, यानी आंसर क्या होना चाहिए 3। ये 3 का ही हम फिगर आउट कर पा रहे, बाकी और किसी का फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस करी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके पहले ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अगर शायद हेल्प मिल जाए ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ बिकॉज इसमें ना एक करेक्ट कॉम्बिनेशन का लॉजिक दिया हुआ है, तो उससे मैं देखना चाहूंगा कि यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैंने सही बनाया होगा ना तो देखो मेरे को एक करेक्ट कॉम्बिनेशन दिख जाएगी और बाकी 3 में एकदम दिखाई देगा कि गलत है। ठीक है, ऑल्सो मैं उससे हेल्प ले पाऊंगा कि हाँ यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ चीजों को। जैसे सी जूलॉजिस्ट भोपाल, सी जो ये तो पहला ही सही निकल गया। ठीक है, ए हिस्टोरियन अहमदाबाद, देखो ए चंडीगढ़ वाला बंदा था तो ये तो गलत है। ठीक है, बी केमिस्ट बैंगलोर, बी केमिस्ट का है बट दिल्ली का निकला है, ये भी गलत है। ई स्टैटिस्टिशियन एंड मुंबई, ए है और ई जो है वो मुंबई का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी पॉइंट गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यार, मेरे को लग रहा है कि मैंने चीजों को सही फिगर आउट करा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 यार, एफ एफ इज फ्रॉम मुंबई, एफ जो है मुंबई का है। ठीक है, एफ अगर मुंबई का है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एफ या तो यहाँ पे आ सकता था या तो यहाँ पे आ सकता था, यहाँ दे नहीं पाऊंगा बिकॉज एफ अगर यहाँ पे है तो वो अहमदाबाद का हो जाएगा, मेरे को क्या देना पड़ेगा, यहीं पे देना पड़ेगा, एफ आ जाएगा मुंबई का। उस केस में पूछा हुआ है द नेम, प्रोफेशन, सिटी एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ अराइवल एट द डिनर कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड बाय फॉर हाउ मेनी पीपल एट फॉर द रेट रिसर्चर। अगर एफ यहाँ पे है तो उस केस में ई को देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ई की यार रैंक अभी भी नहीं पता चल रही है 4 या 8, डी की रैंक अभी भी नहीं पता चल पा रही है, इनकी रैंक अभी भी नहीं पता चल पा रही है, तो फिर से इसका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से मैं बाकियों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को बस यही पता चल रहा है कि इकोनॉमिस्ट एफ मुंबई होने वाला, बस ये पता चल रहा है, उनका ऑर्डर ऑफ अराइवल नहीं पता चल पा रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये, मैं उनकी बाकी चीजें तो फिगर आउट कर पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इसने बोला चारों चीजों पे ध्यान देना है ना, प्रोफेशन, नेम, प्रोफेशन, सिटी एज वेल एज ऑर्डर ऑफ अराइवल, तो अराइवल वाला पॉइंट जरूरी है और मैं चारों का अराइवल नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ। सो करेक्ट आंसर क्या लूंगा, 3 ही लूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसको रब कर लेते हैं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ही रेलिवेंट थी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ बी अराइव्ड एट द डिनर इमीडिएटली बिफोर द साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के एकदम पहले, साइकोलॉजिस्ट के एकदम पहले यानी कि साइकोलॉजिस्ट 5th है तो बी 4th नंबर पे आया होगा। ठीक, अगर बी 4th पे है यानी कि ये 2 3 4 वाला ऑर्डर होने वाला है, देखो मैंने यहाँ पे किनारे इसीलिए लिख रखा है ना, अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 2nd। ठीक है, if B arrived at the dinner immediately before the psychologist who was the first person to arrive at the dinner, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे जी डी केमिस्ट एसोसिएशन और क्या इन चारों में से कुछ और। ठीक है, अब जरा ध्यान दे देना, यहाँ पे 3rd मिल गया, 2nd मिल गया, 4th मिल गया, अपने पास क्या क्या हिंट बची है, एक तो बचा है कि ई होना चाहिए था जो कि 4th या 8th होगा। ठीक है, ई कहाँ पे आ सकता है, या तो वो इधर आना चाहिए था या तो वो इधर आना चाहिए था, इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि ई की जो पॉसिबल रैंक हो सकती थी या पॉसिबल अराइवल वाला जो हो सकता था स्पॉट, वो 4th या 8th होना चाहिए था।
तो अब फोर्थ वाला तो चला गया और वो क्या होने वाला है, ई का 8th होने वाला है, ठीक। यानी कि जो एक बंदा है वो यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ये होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ बी अराइव्ड एट द डिनर immediately before the psychologist who was the first researcher to arrive। फर्स्ट रिसर्चर कौन है, डी है, जो कि एक फिजिसिस्ट है, ठीक है। चलो, so that's it from this particular set। I would rate this as a moderate set। अच्छा सेट था। काफी इसमें इफ बट वाले एलिमेंट है, बट अरेंजमेंट का एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि सिमकैट्स वगैरह में दिखता है। ऑल्सो आई होप यू गाइज आर राइटिंग सिमकैट। अभी जो लास्ट सिमकैट हुआ था उसके अंदर 4 सेट थे। अब अगर चीजों का प्लान अभी तक नहीं किया हो तो यार प्लीज करना शुरू कर दो। यूर लेफ्ट ओनली विद 50 days एंड एक थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इन दैट पर्टिकुलर सिमकैट जो लास्ट हुआ है उसमें सेट नंबर 1 विच वाज ऑन मीन मोड, मीन मीडियन मोड, जो कि काफी हद तक 2023 के जो स्लॉट 1 स्लॉट 2 वाले पेपर है उसमें का इंस्पायर्ड सेट था, तो वो आपको करना चाहिए था। इसके अलावा देयर वाज अ सेट ऑन अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सेट नंबर 2, जिसमें आपको ध्यान होगा कि अगर आपने लिखा है तो आपको ध्यान होगा कि देयर आर 15 पीपल जिनको कि एक अरेंजमेंट में बैठाना है। देवर इट वाज आस्क्ड कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाओ। वो एक ऐसा सेट है जो कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए था, एकदम मत करो। मतलब आप अगर 99.9% की तरफ टारगेट कर रहे हो DLR के अंदर, तब शायद आपको मिले। मतलब दैट पर्टिकुलर सेट वुड बी द लास्ट सेट व्हिच आई वुड बी अटेंडिंग एंड व्हिच आई वुड सजेस्ट यू टू अटेंड, ठीक है। थर्ड सेट विच वाज ऑन अगेन मैक्सिमा मिनिमा, वो सेकंड सेट होना चाहिए था। मतलब फर्स्ट सेट आइडियली इट शुड बी योर मीन मीडियन वाला, सेकंड सेट इट शुड बी योर मैक्सिमा मिनिमा वाला, थर्ड सेट गेम्स एंड टूर्नामेंट वाला, जो कि अरेंजमेंट पे बेस्ड था। उसके अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक्चुअल में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, वो अरेंजमेंट बेस्ड सेट था जहां पे आपको 7 दिन में चीजों को अरेंज करना था। एंड फोर्थ सेट शुड बी योर दैट थिंग। सो प्लीज अगर आप सिमकैट लिख रहे हो, प्लान योर जर्नी, मतलब वो जब मॉक लिखते हो तो आप प्लीज सेट सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान दो, तभी आप नंबर कर पाओगे, तभी आप चीजों को एनकैश कर पाओगे। नहीं तो एवरी टाइम यू वुड बी स्ट्रगलिंग और वो कभी भी आपका वो स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड दैट्स इट।